1947 میں پاکستان نے آزادی تو حاصل کر لی، مگر آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ملا ایک دشمن بھی وہ جو گرا ہوا نیچ اور بے ضمیر دشمن تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بھارت کی۔ 1947 سے لے کے آج 2025 تک بھارت نے پاکستان پر بہت سارے وار کیے، کچھ سامنے سے کیے اور بہت سے پیٹھ کے پیچھے کیے، مگر بھارت کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی۔ 1965 میں بھی بھارت یہ سپنا لے کر پاکستان پہ وار کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا نام دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا، مگر یہ پاکستان کی قوم تھی، یہ پاکستان کی فوج تھی جس نے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور دشمن کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس قوم کو للکار رہا ہے، وہ قوم جو اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتی، وہ قوم جس کے لیے سب سے بڑھ کے اس کا پاکستان ہے، وہ قوم جو چاہے جتنے بھی اختلافات میں ہو، جب بات ملک کی آتی ہے تو ایک ہو جاتی ہے، اور اس کا ثبوت اس قوم نے مئی 2025 کو بھی دیا۔ مگر آج ہم بات کر رہے ہیں سن 1965 کی، جب بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ وار کیا اور پاکستانی قوم نے بھارت کو وہ توڑ جواب دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ 1965 وہ سال جب پاکستان نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ اپنی پہچان بچائی۔ لاہور سے اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، ہر ماں اپنے بیٹے کو صرف یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ بیٹا یا تم واپس آئے یا پھر پرچم، فتح صرف پاکستان کی ہونی چاہیے۔ یہ وقت تھا جب پوری قوم ایک آواز تھی، جب پوری قوم پاک افواج کے پیچھے کھڑی دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ایک قوم ہو کر دشمن سے لڑ رہا تھا، اور دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب تھا ایمان، جذبہ اور وطن۔ 1947 کے بعد کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا زخم بن گیا۔ انڈیا نے 1949 کے سیز فائر کے باوجود اپنا قبضہ برقرار رکھا اور پاکستان نے کشمیریوں کی مدد کا وعدہ نہیں بھلایا۔ 65 تک دونوں ملکوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہی، مگر اس دفعہ جذبہ الگ تھا۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب آواز صرف لفظوں تک نہیں رہے گی۔ آپریشن جبرالٹر سٹارٹ ہوا، ایک خفیہ پلان جس میں پاکستانی عوام اور فریڈم فائٹرز نے لائن آف کنٹرول کے پار گھس کر انڈین فورسز کو چیلنج کیا۔ میں ایک لیفٹنٹ تھا، جونیئر آفیسر، ہم لوگ چھانگا مانگا پہ تھے، ویٹنگ فار وار، ہم تیار ہوئے تھے کہ ابھی جنگ شروع ہوتی ہے۔ جب ہم ٹرینچ میں بیٹھے تھے تو فرنٹ ایک کال آئی، انفارمیشن آئی کہ لاہور پر کہ ایک بہت مارکا کا رن پڑ رہا ہے، خاص لاہور سے 20-30 میل ادھر ادھر، اور انڈینز آر اباؤٹ ٹو بریک ان ود دیئر ٹینکس۔ 6 ستمبر سن 1965 بھارت نے لاہور اور سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے جواب دیا، مگر نفرت سے نہیں، ایمان کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان پر ایک آواز گونجی، دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، مگر ہمارے سپاہی ہر مورچے پر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ اس قدر اشتعال انگیزی کے باوجود ہم نے جس ضبط و تحمل سے کام لیا اسے ہندوستانیوں نے غلط سمجھا۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے،
हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस ऐलान के साथ अवाम, फौज और आवाज़ तीनों एक हो गए और एक एक पाकिस्तानी ने ये अहद कर लिया कि वो पाकिस्तान के दिफा के लिए शाना बिशाना होगा और एक एक पाकिस्तानी अपने घर से निकलकर सरहद की तरफ रवां दवा हो गया। लाहौर का BRB कैनाल, सियालकोट का चविंदा और कसूर का खैमकरन, ये सब जंग का मरकज़ बन गए। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद 5 दिन तक अपनी पोस्ट पर दुश्मन के टैंकों के सामने खड़े रहे। जब उन्हें कहा गया कि पोजीशन छोड़ो, उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपनी ज़मीन से पीछे हटने का हुक्म मत देना। हम जहाँ पर टैंक लड़ रहे थे, हमारे पर उनके टैंक्स का अटैक आया। एक दिन में हमने उनके 14 टैंक नॉकआउट किए हैं और वो शहीद हुए, मगर लाहौर बच गया। चविंदा के मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल हुई और पाकिस्तान के जवानों ने इंडियन आर्मी को रोक के रखा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी टैंक लड़ाई जो थी यहाँ पे थी। ये जब 60 टैंक और उन्होंने 60 टैंक डिस्ट्रॉय किए तो उनका CO भी अपना टैंक छोड़ गया और उसके टैंक से उनके ऑपरेशन ऑर्डर की कापी मिली जिसका नाम उन्होंने नेपाल रखा हुआ था। तो उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें और उसी हिसाब से फिर डिप्लॉयमेंट कर दी। जब दुश्मन ज़मीन पर ना रोक सका तो उसने फ़िज़ा में हमला किया, मगर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उस दिन वो करिश्मा दिखाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मैग्नम ओपस एयरफोर्स का था, दैट वाज द स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक टू स्ट्राइक ऑल द बेसिस। जब असर खान साहब ने हमें दिया था, उन्हें ये समझाया था कि हम डस्क के वक्त, ये शाम के वक्त करेंगे अटैक, जब लाइट होगी अटैक देम एंड बाय द टाइम वी कम बैक इट विल बी डार्क। तो हम जब लैंड कर रहे होंगे तो हिंदुस्तान के पास कोई जहाज़ नहीं जो कि रात के वक्त आके प्रिसीशन अटैक कर सके जैसे हमने किए थे। MM आलम एक लैल और एक शब का किस्सा बन गए। MM आलम साहब के ये अल्फाज आज भी याद हैं। I had faith, that was enough। MM आलम ने महज 1 मिनट से कम टाइम में 7 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और भारत की फ़िज़ाइया को मिट्टी में मिला के रख दिया। अब भारत की फ़िज़ाइया भी भारत की बड़ी फौज की तरह पाश हो चुकी थी और सिर्फ पाक फ़िज़ाइया का आसमानों पर राज था। जब सरगोदा और लाहौर पर बॉम्ब्स गिर रहे थे तो मस्जिदों में बैठे लोग दुआएं कर रहे थे और फ़िज़ा में पाकिस्तान फ़िज़ाइया के पायलट्स अज़ानें दे रहे थे। ये वो लम्हा था जब पूरा पाकिस्तान एक कौम बन गया था, जब पूरी कौम अपने पाकिस्तान का दिफा कर रही थी। Professional level, without hesitation, I would say, were extremely high. A young Air Force, 19 years on since independence. Our commanders were young, both Air Marshal Noor Khan, Azhar Khan, were less than 40. The age at about, now people become OC wings. I was myself about 30. There's no doubt about it that we were experienced and we were aggressive. 1965 की जंग सिर्फ फौज नहीं लड़ी, अवाम ने भी लड़ी। कराची से ढाका तक लोगों ने अपनी ज़ीनतें फ़ौज के लिए दान की। रेडियो पाकिस्तान पर नूर जहां की आवाज़ गूंजती थी, ए वतन के सजीले जवानों। ये सिर्फ नगमा नहीं था, ये मोरल बूस्टर था। हर सिपाही के दिल में वो आवाज़ गूंजती थी। तालिबान हॉस्पिटल्स में खिदमत कर रहे थे और लोग राशन और खून डोनेट कर रहे थे। 1965 पाकिस्तान के जज्बे का सबसे खूबसूरत दौर था। ये जो हमारे एयरमैन थे, इंजीनियर्स थे, टेक्नीशियंस थे, उन्हें जहाज़ों को ऐसी हालत में रिपेयर किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये 65 के जंग में इन हजरात का
उतना ही हिस्सा है जितना पायलट्स का है। जब जंग बढ़ती गई तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने प्रेशर डाला, खासकर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने, और फिर 22 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन ने सीज़ फायर अनाउंस किया। दोनों अतराफ से जंग तो रुक गई मगर जज्बा नहीं। ताशकंद डिक्लेरेशन में भारत और पाकिस्तान ने अमन का ऐलान किया, मगर उसके कुछ दिन बाद ही अयूब खान पर क्रिटिसिज्म होने लग गया और पाकिस्तानी अवाम का ये कहना था कि हम भारत को धूल चटाने ही वाले थे, ये पाकिस्तान पीछे हट गया और ये पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका था अपने दुश्मन को पूरे तरह ख़त्म कर देने का। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान में एक जज्बा, एक फ़ख्र था। लोग कहते थे हमने दुश्मन का मुकाबला किया और उससे रोक दिया, लेकिन असल सवाल था क्या हम जीत गए? टेरिटरी ज़्यादा बदली नहीं, मगर दिलों में एक यकीन पैदा हुआ कि हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ये जज्बा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा असासा बन गया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और वो लाखों जवान जिनके नाम कोई नहीं जानता। ये जंग उन सब का निशान है। हर शहीद की कब्र पर लिखा जा सकता है मैंने वतन को बचाया और वतन मुझे याद रखे। और जब भी 6 सितंबर आता है तो पूरा पाकिस्तान उन्हें दोनों हाथों से सैल्यूट करता है। 1965 की जंग सिर्फ पाकिस्तान की फतह नहीं थी, ये कौम का जन्म था। आज भी जब लाहौर का BRB कैनाल देखा जाता है तो लोग कहते हैं यहाँ से पाकिस्तान ने अपना फ़ख्र बचाया था। ये जंग याद दिलाती है कि जब अवाम और फ़ौज एक सफ़ में होते हैं तो कोई दुश्मन जीत नहीं सकता। 65 की जंग सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक एहसास था। एक वक्त जब आवाज़, जज्बा और ईमान एक हो गए। आज जब हम आपस में लड़ रहे हैं तो सिर्फ एक सवाल याद रखना, क्या हम 65 जैसे फिर एक हो सकते हैं? क्योंकि जब कौम एक होती है तो दुश्मन सिर्फ हार नहीं मानता, वो याद रख लेता है। ये थी 65 की जंग जब हम एक थे। मेरी उस नई नई शादी हुई थी तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ फर्स्ट चाइल्ड। मैं वहाँ गया, जज्बा देखे तो उसने कहा जी, मैंने कहा मैं लेफ्टिनेंट अहमद तस्लीम हूँ, ऐसे ऐसे ये है। उसने कहा लेफ्टिनेंट साहब आप जाएं, जंग लड़ें, हम आपके घर की हिफाजत करेंगे, फिक्र न करें। क्या जज्बा था। 65 में हम एक थे, 71 में हम दो हो गए। वो जज्बा, वो इखलाक, वो कुर्बानी कहीं खो गई। 65 ने हमें दिखाया कि कौम अगर मिलकर खड़ी हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और 71 ने हमें सिखाया जब हम टूट जाते हैं तो छोटी साजिश भी हमें गिरा देती है। इन 6 बरसों में पाकिस्तान ने बहुत तवील सफ़र तय किया। 65 वो साल जब पूरी कौम एक होकर सिर्फ एक नारा लगा रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर 71 ने हमें तोड़ दिया। ये दोनों हमारी तारीख का हिस्सा हैं। हमने अब खुद से सबक सीखना है कि हमें 65 वाला पाकिस्तान चाहिए या फिर 71 वाला पाकिस्तान चाहिए। क्या हमें 65 वाला जज्बा चाहिए या हमने 71 की तरह आपस में लड़ते रहना है? क्या हमने पाकिस्तान को बचाना है या पाकिस्तान को तोड़ना है? इसका फैसला हमने खुद करना है। 65 में पाकिस्तान एक था, हर कोई पाकिस्तान के दिफा के लिए लड़ रहा था, हर किसी को सबसे अजीज़ पाकिस्तान था। मगर आज पाकिस्तान से लड़ रहा है। आज हम आपस की लड़ाई में अपने दुश्मन को इतना ताकतवर बना गए हैं कि दुश्मन जब चाहे हम पर हमला कर देता है, जब चाहे हमें बदनाम करने की
کوششیں کرتا ہے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کیا ہم نے دوبارہ 65 والا پاکستان بن کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دینا ہے, یا بس آپس میں لڑتے رہنا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے, 65 کی جنگ کون جیتا تھا؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.